Hello everyone, welcome back to Easy Classes, your trusted learning platform for pharmacy education. I hope you all are doing great. If you are a B Pharm student and want to understand pharmacy concept in a simple, theoretical and exam oriented way, then you are at the right place. Today we are starting a brand new series on pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry, unit first. Before we begin, let's understand the structure of this unit. Unit first is divided into three major sections. First is introduction of pharmaceutical analysis, second is errors, and third is impurities. Today's lecture is dedicated to the first section, Introduction to Pharmaceutical Analysis. In this lecture, we will cover the complete basics of this section, including introduction to pharmaceutical analysis, different techniques of analysis, method of expressing the strength of solution, primary standards, and secondary standards. These topics are very important because they form the foundation of pharmaceutical analysis and will help you understand the upcoming chapters with ease. So, if you want to build a strong theoretical understanding and score well in your exams, watch this lecture till the end. If you find this session helpful, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to Easy Classes for more pharmacy lectures. So, without wasting any more time, let's begin to today's topic, Introduction to Pharmaceutical Analysis. Now, let's understand the first and most important topic of this unit, what is pharmaceutical analysis. First of all, let's read the definition. Pharmaceutical analysis is the branch of science that deals with the identification, determination, and separation and quantification of drug and pharmaceutical substance to ensure their quality, purity, safety, and efficacy. Now, don't worry. If this definition looks difficult for you, let's understand it word by word. The first word is identification. Identification means ड्रग की आइडेंटिटी को कंफर्म करना. इन सिंपल वर्ड्स हम ये चेक करना होता है कि जो सैंपल हमें मिला है वो एक्चुअल में वही ड्रग है या नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर सैंपल को पैरासीटामोल कहा जा रहा है तो एनालिसिस से कंफर्म किया जाता है कि वो सच में पैरासीटामोल ही है या नहीं. द सेकेंड वर्ड इज डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मीन्स किसी प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिट्यूट को डिटरमाइन या फाइंड आउट करना. इस प्रोसेस में हम ड्रग के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेल्युएट करते हैं. नेक्स्ट इज सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स ड्रग को इम्प्योरिटीज़ या दूसरे अनवांटेड सब्सटेंस से अलग करना, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी तो मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी दोनों अफेक्ट हो सकती हैं. The fourth term is quantification. Quantification means ड्रग की एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेज़र करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर टैबलेट के लेबल पर पैरासीटामोल 500 mg लिखा है तो एनालिसिस से वेरीफाई किया जाता है कि टैबलेट में एक्चुअल में 500 mg ही ड्रग प्रेजेंट है या नहीं. फाइनली, द डेफिनेशन सेज टू एंश्योर क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी. That means pharmaceutical analysis ensure that every medicine is of good quality, free from harmful impurities, safe for patients and effective. So it gives the desired therapeutic effect. So in one simple line, remember this. Pharmaceutical analysis is the science of testing medicines to confirm their identity, purity, quality, safety and exact quantity before they reach to the patient. This is the basic foundation of entire subject. So make sure you understand this concept before moving to the next topic. Now that we have understood what pharmaceutical analysis is, let's discuss its importance also. स्टूडेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेडिसिन को बिना टेस्ट किए मार्केट में भेज दिया जाए तो क्या होगा? हो सकता है मेडिसिन में ड्रग की क्वांटिटी गलत हो, हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो या मेडिसिन पेशेंट पर प्रॉपर इफेक्ट ही ना दिखा रही हो. दैट्स वाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस वन बाय वन. फर्स्ट, एंश्योर क्वालिटी. इसका मतलब है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंश्योर करता है कि मेडिसिन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, पेशेंट तक सिर्फ क्वालिटी मेडिसिन ही पहुंचनी चाहिए. सेकेंड, एंश्योर प्योरिटी. ये चेक करता है कि मेडिसिन में कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी या अनवांटेड सब्सटेंस तो प्रेजेंट नहीं है. अगर इम्प्योरिटीज़ होगी तो मेडिसिन पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है. थर्ड, एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी.
सेफ्टी का मतलब है मेडिसिन पेशेंट के लिए सेफ हो, और एफिकेसी का मतलब है मेडिसिन अपना डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रॉपरली दिखाए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दोनों को इंश्योर करता है। फोर्थ, कंफर्म द करेक्ट ड्रग स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टैबलेट का के लेबल पर पैरासीटामोल 500 mg लिखा है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम ये वेरीफाई करते हैं कि टैबलेट में एक्चुअल में 500 mg ही ड्रग प्रेजेंट है, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा। फाइनली, सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर बैच को मार्केट में भेजने से पहले टेस्ट किया जाता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंश्योर करता है कि हर बैच सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे और पेशेंट तक सेफ मेडिसिन ही पहुंचे। So, in one simple line, remember this: pharmaceutical analysis is important because it ensures the quality, purity, safety, efficacy, and correct strength of medicine before they reach the patient. यही रीज़न है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बैकबोन माना जाता है। Now let's move to our next topic, scope of pharmaceutical analysis. Students, scope का मतलब होता है किस फील्ड में इसका यूज़ होता है, या हम ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ कैसे होगा, इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सिर्फ लैबोरेटरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस फार्मास्यूटिकल फील्ड के ऑलमोस्ट हर एरिया में मिलता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स स्कोप वन बाय वन। तो सबसे पहला है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। जब भी किसी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उसका बनना शुरू होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हर स्टेज पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करना, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सैंपल टेस्ट करना और फाइनल प्रोडक्ट को एनालाइज करना, ये सब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प से किया जाता है। इसका पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि मार्केट में सिर्फ सेफ, प्योर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन ही रिलीज हो। सेकेंड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D भी कहते हैं। जब कोई नई ड्रग डेवलप की जाती है तो उसका फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी को बार बार टेस्ट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रिसर्चर्स को एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिससे वो डिसाइड कर सके कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिंपल वर्ड्स में, विदाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस न्यू मेडिसिन का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड इज क्वालिटी कंट्रोल। अब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है हर बैच की मेडिसिन को टेस्ट करना, वेरीफाई करना और वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं या नहीं ये चेक करना। अगर किसी बैच में इम्प्योरिटी हो, ड्रग स्ट्रेंथ करेक्ट हो या क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट ना हो, तो उस बैच को मार्केट में रिलीज नहीं किया जाता है। इस तरह फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पेशेंट तक सिर्फ सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन पहुंचाने में हेल्प करता है। सो रिमेंबर दिस, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है। रिसर्च एंड डेवलप में ये न्यू ड्रग्स को डेवलप और इवेलुएट करने में हेल्प करता है। क्वालिटी कंट्रोल में ये इंश्योर करता है कि मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। These are three areas clearly show that pharmaceutical analysis is essential part of entire pharmaceutical industry. सो स्टूडेंट्स, अब तक हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फर्स्ट 3 स्कोप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ इज क्वालिटी एश्योरेंस। स्टूडेंट्स को क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में एक कॉमन कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट को टेस्ट करता है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को मॉनिटर करता है। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP फॉलो हो, सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो और प्रोसेस साइंटिफिकली वैलिडेटेड हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो QA डिफेक्ट्स को होने से पहले ही प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन की कैलिब्रेशन टाइम पर नहीं हुई तो टैबलेट्स की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। QA इसी तरह की प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करता है। फिफ्थ है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रेगुलरली चेक करता है कि मेडिसिन एक्सपायर्ड तो नहीं है और उनकी स्टोरेज कंडीशन सही है या नहीं, और पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन और करेक्ट डोज मिल रही है या नहीं। ये सब डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन और वैक्सीन और कुछ एंटीबायोटिक्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है। अगर स्टोरेज कंडीशन गलत हो जाए तो मेडिसिन की पोटेंसी कम हो जाती है। लास्ट है
रेगुलेटरी एजेंसी। रेगुलेटरी एजेंसी ये ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करती हैं। इंडिया में CDSCO मेडिसिन को अप्रूव करता है। इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करती है। WHO इंटरनेशनल गाइडलाइंस बताता है और FDA मेडिसिन की सेफ्टी और क्वालिटी को रेगुलेट करता है। इन एजेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट तक सिर्फ सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन ही पहुंच सके। जब कोई कंपनी न्यू मेडिसिन लॉन्च करती है तो उस मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले क्वालिटी टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। सो स्टूडेंट्स, आज इसमें हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप्स क्या हैं। अब तक आप स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अच्छे से समझ गए होंगे और नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टाइप्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका मेन पर्पस होता है आइडेंटिफाई करना कि सैंपल में क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज़ प्रेजेंट, यानी कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये सिर्फ सब्सटेंस की को आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिटी नहीं। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसका पर्पस होता है डिटरमाइन करना कि सब्सटेंस हाउ मच या व्हाट प्रेजेंट है, यानी कि सब्सटेंस में कितना और क्या प्रेजेंट है, यानी ये एग्जैक्ट अमाउंट या परसेंटेज बताता है। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, क्वालिटेटिव का आंसर है व्हाट और क्वांटिटेटिव का आंसर है हाउ मच या व्हाट प्रेजेंट। इन दोनों मेथड को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं qualitative analysis. Type in detail which is qualitative analysis. Qualitative analysis is the process of identifying the presence or absence of a particular substance or constituent in a given sample. It tells us what a substance is but not how much of it is present. In simple words, it tells us what a substance is but not how much of it is present. Students, qualitative analysis का main purpose किसी सैंपल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी हमें ये पता लगाना होता है कि सैंपल में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। इसमें हम सिर्फ प्रेजेंस या अब्सेंस चेक करते हैं, हमें क्वांटिटी या परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं, या मेडिसिन में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो इसका आंसर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस से मिलता है। Now students, we have understood the definition of qualitative analysis. Let's move to its principle and understand how qualitative analysis actually works. Principle: qualitative analysis is based on formation of characteristics reaction between the analyte and a specific reagent. Students, प्रिंसिपल का मतलब होता है किस बेसिक कॉन्सेप्ट पर कोई टेक्निक काम करती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सैंपल को एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है। मतलब हम सैंपल लेंगे, उसको एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर सैंपल रिएक्ट कराएंगे मतलब रिएक्शन होगी। अगर सैंपल में रिक्वायर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन हमें किसी भी विजिबल चेंज के फॉर्म में दिखाई देती है। विजिबल चेंज जैसे कलर का चेंज हो जाना, प्रेसिपिटेट का बन जाना या गैस का इवेल्युएशन होना, गैस का निकलना। इन चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिक्वायर्ड सब्सटेंस सैंपल में प्रेजेंट है या अब्सेंट है। एक पॉइंट से इसको रिमेंबर याद रख सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस इक्वल टू ऑब्जर्व द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। उससे हमें पता चल जाएगा कि सब्सटेंस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंशन किया हुआ है हमने, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। अब इस प्रिंसिपल को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें चेक करना है किसी अननोन सोल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की ऐड करते हैं, फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया जाता है। अगर सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा तो तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का होता है। इसका मतलब है कि सैंपल में क्लोराइड आयन सक्सेसफुली आइडेंटिफाई हो गया। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब आप किसी लिक्विड में कोई ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं जो वो उसके अंदर घुले नहीं, वो उसके अंदर सेटल डाउन हो जाए, तली में बैठ जाए। हम उस जो नीचे तली में बैठ जाएगा हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट।
जैसे अगर हम पानी में बालू मिलाएं तो पानी में बालू या सैंड मिलेगी नहीं, वो थोड़ी देर बाद नीचे तली में बैठ जाएगी, तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्लोराइड आयन का पता हम इस तरीके से लगता है कि वाइट पीपीटी बन जाता है इस वजह से। तो ये वाइट पीपीटी बन क्यों रहा है? यहाँ पे इस रिएक्शन में वाइट पीपीटी बनना है एजी का मतलब है सिल्वर और सीएल का मतलब है क्लोराइड। एजी और सीएल की आपस में रिएक्शन की वजह से AgCl बन जाता है, जिसकी वजह से वाइट पीपीटी बनना है। इस रिएक्शन में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन होकर सिल्वर क्लोराइड बन जाते हैं, जो वाइट पीपीटी को के फॉर्मेशन में दिखाई देता है। ये विजुअल चेंज हमारे कन्फर्म करता है कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। Now students, let's move to the second type of pharmaceutical analysis, which is quantitative analysis. Quantitative analysis is the process of determining the exact amount or concentration of substance present in given sample. क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि किसी सैंपल में सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी या किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, यानी ये हाउ मच का आंसर देता है। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस सब्सटेंस की आइडेंटिटी अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताता है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक पैरासीटामोल टैबलेट पर 500 mg लिखा है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से वेरीफाई किया जाता है कि टैबलेट में एक्चुअल में 500 mg ड्रग प्रेजेंट है या नहीं। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट है टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी सब्सटेंस की एग्जैक्ट क्वांटिटी डिटरमाइन करना। सेकेंड है टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन न्यूमेरिकल वैल्यू। रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में दिए जाते हैं, जैसे 500 mg, 10%, 0.5 m या मतलब उसकी कुछ यूनिट होगी। थर्ड, टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि रिजल्ट एक्यूरेट, रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल हो, ताकि मेडिसिन की क्वालिटी और डोज सही रहे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स प्रिंसिपल विद सिंपल एग्जाम्पल। Quantitative analysis is based on measurement of physical properties or the amount of substance using suitable instrument or titration method. स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसमें सैंपल को किसी नोन कंसंट्रेशन वाले रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, उनको हम कहते हैं नोन कंसंट्रेशन। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैलकुलेशन की हेल्प से सब्सटेंस की एग्जैक्ट अमाउंट या कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जाती है। इसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे mg, ग्राम, परसेंटेज, मोल पर लीटर। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल है एस्टिमेशन ऑफ पैरासीटामोल इन अ टैबलेट। हमें यहाँ देखना है कि एक टैबलेट में पैरासीटामोल की कितनी एग्जैक्ट अमाउंट है, यानी कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है। हमें ये नहीं पता लगाना कि क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बताना कितना प्रेजेंट है। अब इस प्रिंसिपल को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें चेक करना है कि पैरासीटामोल टैबलेट में एक्चुअल कितना पैरासीटामोल प्रेजेंट है। सबसे पहले टैबलेट को एक्यूरेटली वेट करके पाउडर बनाया जाता है। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होगी उसको वेट करेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे। उसके बाद इसे वाटर में डिसॉल्व करके फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड किया जाता है। ये एक इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, जिसको उसमें ऐड किया जाता है। यानी कि अब हमने क्या किया है, पहले हमने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, उसका पाउडर बनाया, उसको पानी में ऐड कर लिया, पानी में उसको डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड कर दिया। फिर सैंपल को स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से टाइट्रेट किया जाता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ हमें उसको रिएक्ट कराया जाता है, टाइट्रेशन कराई जाती है। जब परमानेंट पिंक कलर अपेयर होता है तो एंड पॉइंट मिल जाता है। अब जितना NaOH यूज़ हुआ है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करके टैबलेट में पैरासीटामोल की एग्जैक्ट क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है। रिजल्ट को mg पर टैबलेट में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको हम और डीपली बाद में पढ़ेंगे, जब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइट्रेशन में ये दोबारा आपके आएगा, तब हम ये जो प्रोसेस है पूरे एग्जाम्पल में जो समझाया गया है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये नोन एनालाइट क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होती है, टाइट्रेंट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि टाइट्रेशन में किस ग्लासवेयर का यूज़ होता है और उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। पहले ये कॉनिकल फ्लास्क है। सबसे पहले पैरासीटामोल टैबलेट का जो पाउडर होता है वो इस कॉनिकल फ्लास्क में डाला जाता है। इस पाउडर को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। फिर इसी सोल्यूशन में 2 से 3 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड किया जाता है। ये सब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर होता है।
नेक्स्ट है ये ब्यूरेट। ब्यूरेट ये कांच की नली होती है। ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भरा जाता है। ये NaOH ही टाइट्रेंट होता है। इस सोल्यूशन को ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में ऐड किया जाता है। ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट को सीधा और स्टेबल रखने के लिए ब्यूरेट स्टैंड का यूज़ किया जाता है। इससे टाइट्रेशन एक्यूरेटली परफॉर्म होती है। एंड पॉइंट, जैसे ही ब्यूरेट से NaOH ऐड करते हैं और फ्लास्क को कॉन्टिन्यूसली swirl करते हैं, एक स्टेज पर परमानेंट लाइट पिंक कलर अपेयर होता है। इस कलर चेंज को एंड पॉइंट कहते हैं। तो इसमें रिजल्ट आता है ब्यूरेट से जितना NaOH यूज हुआ वो उस वॉल्यूम के बेसिस पर कैलकुलेशन करके टैबलेट में पैरासीटामोल की एग्जैक्ट क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है। बाकी इसे और ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। Now students, let's look at the different techniques of analysis. Broadly, analytical techniques are classified into two main categories. First category is classical or chemical or non-instrumental method. ये तीनों नाम ही एक ही के हैं. In these method, analysis is performed using chemical reaction and simple laboratory glassware without sophisticated instrument. These include titrimetric यानी कि volumetric, gravimetric, calorimetric and gas analysis method. The second category is instrumental method. In these method, modern scientific instruments are used to obtain accurate, sensitive and rapid result. These include spectroscopy, chromatographic, electrochemical, thermal and other instrumental techniques. Now we study the first category of analytical techniques, that is classical or chemical method, are also known as non-instrumental method. These methods involve chemical reaction or physical measurements performed without the use of sophisticated instrument. इसका मतलब है कि इन methods में analysis के लिए advanced instrument का use नहीं किया जाता है। इसके बदले chemical reaction, simple laboratory glassware और basic apparatus का use किया जाता है। ये मेथड सिंपल, इकोनॉमिकल और लैबोरेटरी टीचिंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। मतलब इन मेथड्स में किसी भी तरीके के एडवांस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया जाता। सिंपल जो हमारे लैब में ग्लासवेयर्स होते हैं उनको यूज़ करके ही इनको परफॉर्म किया जाता है। क्लासिकल मेथड्स को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है टाइट्रीमेट्रिक, इसको वॉल्यूमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। इसमें सब्सटेंस की क्वांटिटी टाइट्रेशन के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक मेथड, एनालिसिस सब्सटेंस के वेट के बेसिस पर किया जाता है। थर्ड है कैलोरीमेट्रिक मेथड, कलर इंटेंसिटी के बेसिस पर कंसंट्रेशन एस्टिमेट की जाती है। गैस एनालिसिस, गैसेस की आइडेंटिफिकेशन या क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है। तो इसमें याद रखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम के बेसिस पर टाइट्रेशन की जाती है, ग्रेविमेट्रिक में वेट के बेसिस पर, कैलोरीमेट्रिक में कलर के बेसिस पर और गैस एनालिसिस में गैसेस का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इनमें सबसे पहले हम टाइट्रीमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिकल टेक्निक में से एक है। नाउ we start with first classical method, volumetric analysis, also known as titrimetric analysis, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। Volumetric analysis is a quantitative analytical technique. ये quantitative analytical technique है in which the volume of standard solution required to react completely with a known amount of analyte is measured to determine the concentration or amount of the analyte. सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव मेथड है, यानी कि इसमें क्वांटिटी का पता लगाते हैं, जिसमें हम किसी सब्सटेंस की एग्जैक्ट क्वांटिटी या कंसंट्रेशन उसके रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन के वॉल्यूम को मेजर करके डिटरमाइन करते हैं। यानी कि दो केमिकल्स के आपस में रिएक्शन होती है और एक का कंसंट्रेशन या क्वांटिटी हमें पता होती है, हम दूसरे की कंसंट्रेशन उसके थ्रू निकालते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन को टाइट्रेंट कहा जाता है। जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गई जिसकी कंसंट्रेशन नोन है उसको टाइट्रेंट कहते हैं, और जिस सोल्यूशन का एनालिसिस करना होता है, यानी कि जिसके बारे में पता लगाना है, जिसकी जांच करनी है, जिसकी क्वांटिटी का पता करना है, उसे एनालाइट कहते हैं। टाइट्रेंट को ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप एनालाइट में ऐड किया जाता है। इसका प्रिंसिपल volumetric analysis is based on the principle of complete chemical reaction between the analyte and titrant is known as
stoichiometric ratio at the equivalence point. The amount of titrant added is exactly equivalent to the amount of analyte present. मतलब हम जिन दो चीज़ों को मिला रहे हैं उन दोनों की मात्रा एक्जैक्टली इक्वलेंट होगी, यानी लगभग बराबर होगी। इसके प्रिंसिपल ये है कि एनालाइट और टाइट्रेंट एक फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उस पॉइंट को इक्वलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट कहते हैं। इस एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली अ सुटेबल इंडिकेटर यूज किया जाता है जो कलर चेंज दिखाता है। इसी कलर चेंज के बेसिस पर हम ब्यूरेट से यूज हुए टाइट्रेंट का वॉल्यूम नोट करते हैं और उसी से एनालाइट की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। Now, let's discuss the types of volumetric analysis. On the basis of the type of chemical reaction involved, volumetric analysis is classified into 4 major types. First is acid-base titration. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस मेथड में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल है HCl और वर्सेस NaOH। HCl एक एसिड है और NaOH बेस है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है रिडॉक्स, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जहाँ एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस सल्फेट, KMnO4 वर्सेस FeSO4। थर्ड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस टाइप में रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है जिससे एंड पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट वर्सेस सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन का मतलब है जब एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और हमें दो चीज़ें चाहिए होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम चीज़ों को घोल रहे हैं, किसी को उसके अंदर मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। तो अगर सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं और वो उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहा, घुल नहीं रहा है, वो घुलने के बजाय उसमें नीचे तली में बैठ जाता है, तो जो नीचे बैठ रहा है, जो सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन प्रेसिपिटेट पर बेस्ड है। फोर्थ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें मेटल आयंस और कॉम्प्लेक्सिक एजेंट के बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल EDTA वर्सेस मैग्नीशियम आयन। In all these types of volumetric analysis, the endpoint is detected using a suitable indicator. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्लीट किया है। हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, स्कोप, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेसिक के साथ उसके डिफरेंट टाइप्स भी समझे हैं। आई होप अब आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये फाउंडेशन आगे के टॉपिक्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इन डिटेल, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। हम इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, थ्योरीज, इंडिकेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एरर, इम्प्योरिटीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फार्मेसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हैप्पी लर्निंग।